Recording in progress. Good morning, everyone. Good evening, everyone. Let's start our आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन 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 सभी को। Thank you for joining and sorry for the delay. So yes, you are asking the question. Poonam ji will maybe answer after this. ठीक है ना? कॉल के बाद हम लोग उसका आंसर करेंगे. So sit in a comfortable position. If you want, you can lie down also. If you are driving, then you focus on your driving as well. Take 3 deep breaths. If you want, you can exhale from your mouth also, at least 3 to 5. Repeat our mantra with me. I'm not just a body, I'm a soul. Soul is nothing but the creator itself. And creator energy is unconditional love. I am also conditional love, unconditional love. I want to remain unconditional love. Only on Earth planet we have so many types of love. But I think outside, whoever is there in the higher consciousness, other civilization, neutral being, they know only one love. What we call unconditional love on Earth. For them, love means love, where there is no conditions. The moment we put some conditions when we love someone, then it's not love. You can say it's a conditional love or it's a limited love. That means you are not aligned to your soul, you are not aligned to the creator energy. So please ensure on earth you always be yourself, be unconditional love, irrespective of whatever situation it happens in your life. Don't be something what you are not. Let me mute everyone. So whenever, wherever you are not aligned to unconditional love, when you face any situation in your life, there is a misalignment you create. And when there is a misalignment, there is a action also pending on you to align back. That action, we call it karma in Sanskrit. So karma is not a punishment, but it is an opportunity for us to align back to our true nature, to our true energy, to unconditional love. And you can be in unconditional love when you are neutral about the situation. If you are not able to remain neutral in any situation, then you cannot be in unconditional love. So we all are here to experience things whenever it happens in our life. And after taking all kind of experiences, we stay neutral. So we can become unconditional love. So now it's very clear to all of us.
Let's see what higher self wants to do today. If you have any question, just think of it in your mind. Ask your higher self. Try to read your higher self. Have a question in your mind. Ask higher self to answer the question and see what answer you are receiving. There is no coincidence in life. Whatever answer you get, whatever hints you are getting from your higher self, that is at this moment, in this moment, that is the best answer. That is what you are supposed to do. And the higher self answer keep repeating every moment based on like what situation you are in. Because we are here to experience, explore the themes of our life, different scenarios, from different perception, from different belief system. We all exist because we have some task to do on earth. We have some experience that we need to complete on earth. And we have been given complete support from our higher self. He is the one who is creating our reality based on what is pending lessons for you. So there is no one is there to punish you. Everything is opportunity for you. Whenever you have fear, it shows you have some negative definition. You have some situation in your life where you are not aligned with your true love. You are not aligned with unconditional love. So whenever any fear comes in your life, don't be afraid. It's alarm for you. It's alarm from the divine, from your soul or your higher self. That you have some negative definition. You have the misalignment here. And the moment you come to know, I have fear in my life, instead of going with the fear energy, just use this as an opportunity to correct your alignment. The creator has created the entire physical reality game with a very good intention that you enjoy here each and every moment and complete your experiences. He has arranged a moment by moment helpline to you for all of us. He is giving all the required information in now moment. He is giving all the logistic, materialistic thing we need. Despite of this and knowing multiple times, still we think about the future and past. Past is gone. Future depends on what you are writing now. So whatever you are able to see in your physical reality, that is projection of your personality. Whatever you believe something is true, the moment you believe is true, it started happening in your life. When it start happening in your life, you believe more in that.
And it will keep happening in your life until unless you don't have some other belief, you don't replace this belief with something else. So you are the one. Some of the things you already chosen before you came on earth, and some in between experiences, how you are going to go through the experience. You have the free will to choose whether you want to complete your experience happily or you want to cry. You are allowed to do whatever you want. But whatever action you take, if you are not aligned with unconditional love, then there is again misalignment there also. So let's think, when everything is given to us, all the information is given to us, ourself is there to help us, then why we should create more misalignment in our life? Shouldn't we be aligned with our higher self, with our true self, with our soul, with the creator energy? That is unconditional love. Think of any situation where you felt you could not stay neutral, where you could not behave like a soul, where you could not behave like a good human being, where you could not help yourself, where you could not be in a neutral energy. What is important for us is to be in awareness that I'm not just a body, I am a soul. Body is just a small fraction of all that is. Feel you are there in each and every particle. You are there in each and everything, whatever you see around. So let's understand the misalignment one more time, because we keep forgetting. Judgment is not our energy because it's not unconditional love. Rejection, rejecting someone, or someone is rejecting you, that is also not your energy because that is not unconditional love. Fear, you are limiting yourself, limiting to certain, you are happy only in certain situation, not happy in everything. Somewhere you have fear that you may lose something. So here also you are putting the conditions. It's not unconditional love. Anger is not good for us because we generate a lot of negative vibes within us and we are out of control. We cannot be neutral there. If not neutral, then there is no way we can be in unconditional love. Caring too much of others. Sometimes we care too much of others and we somewhere compromise with our own happiness, own value. We don't value ourselves sometimes. We give more value to others, more care for others. Why you are doing? Because they are others, where we all are one. Yes, you are also putting the condition. You want to make someone happy.
You don't have to. You have to balance between you care for yourself, you care for others. You have to set the boundaries there. Compromise. Compromise means you are not able to express yourself fully, or you are doing something which you feel you don't prefer. So why you are doing something you don't prefer? Because you see something may not work. Again, you have some fear. You may lose something. If you don't take care of others, they won't also take care of you. But do you know, if you don't take care of yourself, the others are also not going to take care of yourself. So again, misalignment. Because then you won't be happy. You won't be neutral. Again, you can't be unconditional love. You're feeling guilty. Why? Because you are thinking you've done something wrong. You know, we are here to complete our experience. And some experience may be very clean. Some experiences may be very dirty in a nature. Something very chaotic. So don't assume everything is going to be smooth in your life, because we are not here on earth to have only good experiences. Sometimes we have to deal with the situation where unknowingly we have done something which is not taken in a good way by others, by society. What is society? Your reflection. Means somewhere even you have done the same thing, you have not taken it in a positive way. That's why society is also not taking it in a positive way. And the moment you started taking in a positive way, okay, whatever happens in my life, it was just an experience, and I have to just move on. Because experience can be anything. Sometimes you may lose the respect, but that doesn't mean you stop loving yourself, you stop loving others. Because you are writing your own story. There is no other person. Everything is your reflection. If you feel bad, people will come and make you feel bad. But even like there is some situation happens in your life where you are feeling guilty or you are in a shame energy, but you don't feel so, then even people cannot do anything on this. So everything is you. Do good and forget. Don't expect anything. If you are not able to do something, you don't feel good in doing something, don't do it. If you feel I cannot do it, but just to make other people happy or to be in a good books of others, I am doing it, don't do it. Do whatever you can without any further expectation. If you can do it. Otherwise, no. Don't talk something about this person has done this, he should have done this, that, this one. Think for a moment, who is creating the reality? The other person? No. It's your higher self. Remember, you already know this. It's your higher self who is creating the reality for the pending action item, pending karmas. And if you have 10 pending karmas, he doesn't have any choice to repeat those situations again and again until unless you are not aligned. So why we think ourselves can make a mistakes here? No, he can't. Whatever he has done, this is what you have to learn. Is there any luck? No, there is no luck. If thing happens in your favor, you said, yes, I am lucky.
If it goes the other way, you feel, no, I'm unfortunate. But there is nothing called lucky or unfortunate. It's all experiences. If you don't like something, you feel, okay, I'm not lucky here. Change it. That's all. Because whatever you see around you, everything is manifested by either your physical mind or by your higher self. How your physical mind, when you believe something to be true, somebody is saying something, you believe in this as it is, and you started believing in this, that will start happening in your life. And whatever you already chosen, your higher self is anyway already have where situation where you have to align. Everything is happening through synchronicity in your life. Any event, if suppose you have to complete one experience, your higher self has to move you from a place to where is going to happen with you. And then he has to bring the other person also to that scene wherever is going to happen. Then he will set your mood, he will set the other's mood also. He'll create a situation in front of you. And if you like you have to fight there, he'll create some argument automatically. If you say, I'm not going to trigger it today because I am not in a mood or I don't want to take it, still it happens. Because your higher self can make other person and you also say what will create the argument. And you say, no, this time I'm not going to say this words which will create the problem. Your higher self will create some argument. It's like you are going in all of a sudden you are in an angry mode or something, and whatever you didn't want to say started from your mouth now. You started coming. So do you think you can avoid the situation if your health self has already decided that you have to experience here? No, you can't. Many times you have seen it. You go with the intention that you are not going to fight this time with your friend or relative or your partner, especially on few topics. But still argument happens because either you have to learn something from it or other has to learn. You are stopping yourself means you already learn. You are aware that this is not something I should do it. But even the other person has to learn it because you have soul contract for each and every event with the other person higher self. Your higher self and the other person higher self already there, and they are deciding what should happen, what should not happen. Things are not your control here. Only thing that is in your control is how to behave, how to act, how to react, actually, I should say, how to react in this situation. If you are reacting and aligning with your higher self, with your soul energy, unconditional love, neutral way, then you are done with the situation. Or if you misalign here, you can't be a neutral or unconditional love in that situation, then there is a misalignment. It will keep repeating again and again. So I think now it's very clear to each and everyone who is there in our soul family. There is no coincidence. Everything is well organized, orchestrated ways happening. Everyone is playing their role whenever time comes. Everything is happening through synchronicity. If you are sitting in your home and you have to fight in some other friend's house, you'll be taken there. Someone will call you and say, hey, come here, we'll have party. And there won't be any party. The situation will be created there. So that's why I'm telling you, instead of
like preparing for something better, always be in a awareness. I am not a body, I am a soul. Soul is nothing but the creator itself, and that is unconditional love energy. So I have to be in unconditional love. So more you keep this thing in your mind, more you are aware of this in any moment, you will see like things are becoming normal day by day, every moment by moment. And one day you feel there is nothing in this world which can really make you feel bad. So this is what we all have to achieve. So whatever situation comes in your life, it doesn't matter what is happening, how many times is happening. What matters is this time, how you are reacting to it. If it is aligned, you are done. You can be neutral. You can be unconditional love. If it is not aligned, your reaction is not aligned, then there is a misalignment. So if you consider all the misalignment, whatever we just mentioned here, we discussed here, if you put everything as a alarm, not as a or opportunity, not as an punishment, and the other person who is acting on that, who is playing the role there, he is also the same as you. He is also the unconditional love, but he is playing a different role in your life. Doesn't mean he is not a creator or is not a soul. He is also soul. But still, if he is playing a bad role in your life, then yes, he deserves a thanks from you. Because if he doesn't do it, you can't even know that something is, I have some misalignment there. Who is giving the opportunity for you? Other people. Who are other people? The same creator. You are also creator, they are also creator. Basically, if you see the top, you all are same, we all are one. One is all is one. But there is a separation event created on earth. So don't get into the illusion of separation. Remember, we all are one, and we all are playing role here to teach each other. We all are helping each other so we can complete our lessons and move to the higher consciousness. Or what is consciousness? Self-realization or self-awareness, who you are, who you truly are. More you are aligned with your true self, more you are in a self-awareness, more you realize that you are a creator, you are unconditional love. Your consciousness will be higher, higher, and higher. You'll go higher in that path. And wherever you are not able to align, you're not able to realize something who you are in any situation, then you are not creating any consciousness there. It's just an experience. And to reach to that consciousness, to reach to that consciousness of yourself, whatever experiences you are having, negative, positive, or neutral, all these three, and then finally unconditional love, the way you are reacting now. All these become your overall experience. And that is the only thing you will take from the physical reality when you move away from this reality. So why you are thinking too much when negative thing happens? Because this is the credit that you are going to get. How much negative things you already experience? How many positive things you already experience in a physical reality? How many situations you could be in neutral and what way?
what kind of technique you use, how you change yourself, then how you became what you are unconditional love. These all things are counted. So if you think I'll take only, no, I don't like the negative, I'll take the positive and the neutral one, unconditional love. No, it's not going to work. Experience means complete experience. So if something happening in your life that is negative, you don't prefer. You don't prefer why? Because you also feel it's not aligned with my joy energy, it's not aligned with my soul energy. That's why you don't prefer. So the moment it comes in your life, think it's an opportunity for you to align, then there is no negative there. Then everything is a positive. Someone says there is a typo in your letter. It's an opportunity for you to correct it. That's all. Don't think someone has pointed out. Just say somebody has helped me in here. Correct it. You're aligned. Why we are talking every time a very general way? Why we are talking in a complete way? Why we are talking? Why we are covering each and everything here? We are covering because we keep forgetting and we keep repeating the old way. Because until unless something doesn't become your habit, it won't become your personality. And if it's not becoming your personality, then you are not going to see the reflection in the outer physical reality also. So I know some of you are new. That's why we prefer to repeat it again and again, even someone join in between also, so they understand. Because those are very important things that we all need to understand. So let's conclude. What is the best way? Whatever happens in your life that you don't prefer or you treat a negative way, it's an opportunity for you to align back so it doesn't get repeated in your life again and again. Number one. When it is an opportunity, it should be taken in a positive way. And once you already taken the negative experience, you have taken it in a positive way, and you have experienced in a positive way also, then you can easily become a neutral because now you know both the scenarios. You know what happens in a worst case and how to come over those things. And when it the other way, then when it happens in a negative way, what like worst can happen? Always think of and close it. Complete the negative, positive, neutral way. The moment you know both, you are anyway neutral because you know why it's happening. Then, whatever is the belief behind the thing, remove the belief. Change the definition if you can change. Don't judge anyone. So you don't need a very lengthy book or text or something to understand what is the misalignment. Simple thumb rule you can follow. Are you neutral in unconditional love? No. This is opportunity for me. I have to align. That's all. Entire things covered within this. You don't have to remember each and every kind of emotion, feelings. Are you feeling low? Yes. Misalignment. Because unconditional love is a very high energy. Low means fear. This can be used in any scenario in our life, and we can easily complete the experience.
Such a simple thing from the universe side. No confusion. Straight away. Just one thing. Unconditional love or not. Aligned with soul or not. That's all. And be unconditional love. Complete all the experience fast. So a higher self can say, okay, tick mark, okay, done. Experience is done. Consciousness is granted. You are done with this particular scenario. Next scenario, next scenario, next scenario. All done. Come back. Let's see if we have to take more experience later in the life. Not, then enjoy. Because there is no time or space there. When there is no time or space there, so you don't even feel like you are waiting or you are not doing anything. Because there is nothing to do. Only physical reality you can do something. There you don't have anything to do. You are always in a awareness, you are always in a thing, or you are not even exist there. You are just a creator there. So hope you understood now. You have to control your reaction, how you react to the situation. Slowly bring your awareness to your physical body. Come with all the understanding. Because if we discuss here, that means your higher self is giving this information in this moment. So this happens only when your higher self already planned earlier to trigger some event where you need this information. So use this information, whatever is going to happen in your life in now moment. So you're already tuned with all the information. If there is a problem, there will be solution also in that moment. Just stay neutral. You can easily figure it out. And slowly open your eyes. Come to your awareness. Let me know if you have any questions. Thank you. थैंक Poonam, यू सर। जी जी मैम बताइए। yeah, अरुणिमा जी बोलिए। जी जी सर, थैंक यू बोलने के लिए। इसके अलावा कुछ है नहीं सर, थैंक यू के अलावा। सब कुछ तो पहले से जान क्या बोलते हैं उसको, सुनने वाली बात ही थी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हर रोज इम्प्लीमेंट करने के लिए और अच्छा हो रहा है। और जीवन में जो क्यों, कब, कैसे, ये जो शब्द था ना, वो अभी लगता है कि नहीं, अभी जिंदगी से निकाल देंगे ये सब को, क्यों, कैसे और कब। क्योंकि What? हम ही है सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम ही चेंज कर सकते हैं। Yes. मतलब न्यूट्रल रहना है और अपने जीवन को इजी इजी वे में हम जी सकते हैं। ये जो इतना इजी हो रहा है अभी, तो सब सबके लिए थैंक यू। Yeah, थैंक thank यू you, सर। अरुणिमा जी। Yes, पूनम पांडे जी, आपको आंसर्स मिल गए? जी सर। जी सर, पता था, लेकिन थोड़ा सा आपके मुंह से थोड़ा और रिपीटेड होना चाहिए था। वैसे अगर हम कुछ भी चाह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम लड़ें तो हम लड़ाई भी करते हैं, हम चाहते हैं कि प्रेम करें तो प्रेम करते हैं, हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। कि कोई बात को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ रहा है, छोड़ना चाहते हैं तो छूट रहा है, तो वो हमारे हाथों में है। वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। कभी कभी मजे लेने के लिए बातों को लंबे भी खींच के लेके जाते हैं, तो चलो चलने देते हैं, फिर उसको वापस लेके आते हैं, तो वो एकदम इतना अच्छा लग रहा है कि जिस समय जिस मोड़ पे हमें छोड़ना है उसी समय पे छोड़ भी पाते हैं, लेके चलना है लेके चल पाते हैं। और वो सब सारी चीजें जो कहावतें हैं, वो सब कहावतें लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं तुम अपनी बातों को मनाने की कोशिश मत करो, ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैं नहीं मानती सर वो सब चीजों में। कि लक होता है, ये चांस होता है, लेबर होता है। आप जब तक नहीं उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे, लव एनर्जी में नहीं रहोगे, या फिर अलाइनमेंट में नहीं रहोगे, तो वो चीजें आपके पास नहीं आ पाएगी। ये बात क्लियर है सर। Yes.
और सिचुएशन तो आती रहेगी लाइफ में, इवन आपने सीख लिया लेसन तो भी आएगा। यही वही वाली बात है, जैसे आपने रोटी बनाना सीख लिया तो भी सिचुएशन तो आएगी रोटी बनाने की, राइट? क्योंकि वरना करोगे क्या? भाई जब सारे लेसन कंप्लीट कर लिए, फिजिकल रियलिटी में रहना है और फिर दूसरों को कुछ बताना है कि ऐसे करना है, तो एक्टिविटीज तो डालेंगे ना एयर सेल्फ, क्योंकि जो ये रियलिटी है फिजिकल, वो रियल तो है नहीं। और जो चीज रियल नहीं होती है तो प्रोजेक्ट करते रहनी पड़ता है, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना, सीन तो क्रिएट करना ही है ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या है? ये मान के चलो कोई आपको कह दे कि आपको ध्यान करना है 24 आवर्स, और आपको 10 दिन लगातार ध्यान करना है, तो कुछ ना कुछ तो क्रिएट करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिखाते रहना पड़ेगा, राइट? वही हायर सेल्फ भी करता है। जो आपने जो कंप्लीट कर लिया सिनारियो, अगर आपका नहीं दिखा रहे तो बाजू वाले का दिखा देंगे, फ्रेंड का दिखा देंगे, जाओ उसको गाइड करो। तो सिचुएशन तो हमेशा आती रहेगी, क्योंकि फिजिकल रियलिटी रियल नहीं है। और रियल नहीं है मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना बीच में रोक दिया कि प्रोजेक्शन नहीं डालेंगे। ज्यादा ज्यादा आपको सुला सकते हैं, कितना सुलाएंगे लेकिन? भाई सुलाएंगे तो आपको फिजिकल रियलिटी नहीं दिख रही है यहाँ पे। चलो ठीक है, पर जो रियल है ही नहीं उसको रियल दिखाने के लिए तो आई सेल्फ को मेहनत करनी पड़ती है। एटलीस्ट 24 आवर्स का कुछ ना कुछ तो दिखाना है सामने, हर दिन। जी सर, थैंक यू। थैंक यू जी। हु एल्स? Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. यस निर्मल जी। सर कल जब आप क्लास में थी तो पता नहीं अजीब से तबीयत इतनी डाउन हो गई थी, तो फिर आप करवा रहे थे जो भी गाने चला रहे थे, तो मेरे को एकदम बॉडी में हीट महसूस हुई। मैंने लिखा भी था अपना एक्सपीरियंस। यस। और फिर आई हैड टू गो टू द टॉयलेट आल्सो। देन मेरा सर अब गाने चल रहे थे तभी मैंने इतना कुछ कर लिया। फिर उसके बाद मेरा दिल करे कि मैं नहा लूँ अभी फटाफट। आपके गाने चल रहे थे, मैं नहा के अपना चेंज करके फिर दोबारा आई, तब भी गाने चल रहे थे। तो तब तक मेरी काफ़ी तबीयत ठीक हो गई थी। और फिर भी लेकिन इतनी जान नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। बहुत ज़्यादा डॉर्मेंट थी। फिर मैंने किसी ने मेरे घर आना था, उनको मैंने कहा मेरे को ना एक तो अपनी शुगर चेक करवानी है, मेरा ग्लाइकोमीटर मेरे से चल नहीं रहा था, एरर दे रहा था। एक तो मेरे को अपनी शुगर चेक करानी है, दूसरा मेरे को एक अपना न्यूरोबॉर्न का इंजेक्शन लगवाना है। तो मैं चली गई उनके साथ। मैं इतना काम करके आ गई तो सर फिर मैंने आई वेंट टू द पार्लर। वहाँ जाके अपना फेशियल और बालों का ट्रीटमेंट जो था लिया, थोड़ी सी मसाज भी ली। तो जो न्यूरोबर्न में भी इट वाज अ न्यूरोबर्न इंजेक्शन एंड मसाज दे वर्कड। और शाम को तो मैं ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और सी काम भी जी, किया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको लो वाइब्रेशन में आप जाते हैं ना, एक चीज हमेशा याद रखो, वो सिचुएशन क्यों आई है, वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए मिसअलाइनमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ, बोलते ना एनर्जी के साथ लो में जाने से अच्छा है फटाक से मंत्र बोलो, आई एम नॉट जस्ट अ बॉडी, आई एम अ सोल, सोल इज नथिंग बट द अनकंडीशनल लव क्रिएटर, वो पूरा बोलो आप। तो आपकी वाइब्रेशन अपने आप अच्छा। ऊपर आ जाएगी। और उसके बाद आप देखो ये क्यों हुआ है, क्या थॉट्स आए, क्या सिचुएशन सामने आई है, और क्या आपको कुछ हो सकता है कि आपके हायर सेल्फ आपको कुछ दिखाना चाहते थे कल आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से हाँ कुछ जो हुआ है, सच है। और उसकी वजह से ये सिम्टम्स आपको दिखाए गए थे। सच में। तो उस चीज को कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि फिर दोबारा क्यों रिपीट करना है? ऐसे एक्सपीरियंस को रिपीट नहीं। हम्म हम्म एक बार जब होता है ना,
सबसे पहले मंत्रा बोलो अपना, हम्म, हायर वाइब्रेशन में आओ और देखो कि ये हुआ क्यों है। हम्म, तो एक बात मैं बता देता हूँ फिजिकल रियलिटी की, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक हम्म, सिचुएशन की वजह से आपको माइग्रेन आता है, तो हम्म, जब आप माइग्रेन को बात कर रहे हो या कोई उसके ऊपर टॉपिक पे कोई बात कर रहा है या उस तरह की सिचुएशन आ रही है, तो हायर सेल्फ उसी वक्त आपको सिम्टम्स देते हैं बॉडी में, ये इसकी वजह से ये पेन। तो आपको अपनी रिपोर्ट को कहीं चेक कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम पड़ गया ये सिचुएशन हम्म, में ऐसा सोचने से, इस एनर्जी में जाने से ये हो रहा है। तो ये सिम्टम्स होता है। जैसे हम जब मान लो कि फेमिनाइन पावर के बारे में बात कर रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, तो फिर आपके लेफ्ट में अगर पेन हो रहा है, तो पुराना पेन है, तो उस समय जब वो टॉपिक चल रहा होगा ना, आपको लेफ्ट में पेन होगा बॉडी में कहीं ना कहीं। तो आपको ये समझना है कि जो मेरे अंदर हम्म, डिसअलाइनमेंट एनर्जी है फेमिनाइन में, उसकी वजह से ये यहाँ पे पेन है। तो फिर आपको उस पेन को, ट्रीटमेंट आपका तभी होगा जब आप उस फेमिनाइन मिसअलाइनमेंट को अलाइन करते हो। सेम थिंग विद योर राइट हैंड साइड बॉडी आल्सो। अगर आपको सर्वाइवल मस्कुलाइन पावर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, आप सोच रहे हो किसी भी सिचुएशन के हम्म, बारे में, उसी वक्त दर्द शुरू हो जाएगा। वो दर्द इसलिए नहीं है कि हम बात कर रहे हैं, वो दर्द इसलिए है क्योंकि वो हाई सेल्फ कह रहे हैं जो अभी टॉपिक चल रहा है, जो अभी बात चल रही है, उसकी वजह से ये दर्द है। तो वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। क्लियर? तो आपको मालूम हाँ जी, हाँ पड़ेगा, जी। अच्छा ये पेन इसकी वजह से है, वाओ मेरे को मस्कुलाइन पावर पे काम करना है। मेरे को सर्वाइवल का जो अच्छा। सोच रहे दिमाग में है, मेरे क्या क्या थॉट्स है, लिस्ट आउट करो किस किस सिचुएशन में मेरे को। फिर उसके बाद में आप अवेयरनेस में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि जब भी राइट में दर्द हो रहा है तो देखो मस्कुलाइन किस बारे में आप सोच रहे हो, कौन सी पावर है वो। तो ये हम्म, मतलब सिग्नल्स हैं ये हाई सेल में ऑलरेडी सिग्नल बना के दिए हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाए। अच्छा। तो कल की सिचुएशन में उसको जाने मत देना, देखो उसके पहले क्या सोच रहे थे, इमीडिएटली होना चाहिए वह तो। और अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा है तो हायर सेल्फ को बोलो, ओके आई नो हायर सेल्फ ये क्यों हुआ, प्लीज गिव मी। पहले बोलना आई नो बोलोगे तभी वो आपको याद दिलाएंगे, नहीं तो नहीं। बिना आपके आई नो किए वो अच्छा। दिखाएंगे नहीं आपको। तो बोला ओके मुझे पता है, हायर सेल्फ बताओ ये क्यों हुआ, क्योंकि हायर अच्छा। सेल्फ आप अलग नहीं हो ना। तो आपको अपने आप मेमोरी में दिला देंगे, ओ हम्म, देखो ये बात हुआ था, वो बंदा आया था, ये आया था, और लास्ट टाइम भी टेस्ट हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था, तो इस तरह के इश्यूज आए थे जो फियर आपके अंदर है। तो लास्ट टाइम जो फियर आए थे इस बार नहीं लेना है टेस्ट के पहले। इनफेक्ट जब टेस्ट कराने जाओ ना तो बोलो हम्म, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, ऑल रिपोर्ट्स आर, एवरी यस, यस। पार्ट इज वर्किंग परफेक्टली। ये करके आप जैसे इस वाइब्रेशन में रहोगे ना, बॉडी चेंज हो जाएगी। और फिर डॉक्टर कोई भी टेस्ट करेगा वो अच्छी आएगी। और आपकी ब्रेन ने एक बार वो अच्छी रिपोर्ट देख ली तो ब्रेन की तो आदत है, जैसे रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, उसने हम्म, कर ली कि एकदम सही है, तो आपकी बॉडी अपने आप सही होने लग जाएगी। और हाँ अगर जी। आप ये सोच के गए लास्ट टाइम मेरे रिपोर्ट में प्रॉब्लम था, तो इस बार देखती हूँ फिर से ना निकल आए, तो फियर आ गया, तो फिर से निकल के आएगा। अच्छा। फियर वाली बॉडी ठीक में है। स्विच हो जाओगे आप। तो जो अब हम्म, बॉडी का टेस्ट होगा, इसीलिए तो आप देख रहे हो ना, मेडिकल साइंस में ये होता है, वो कहते हैं ना अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेसिकली वो करते हैं और आप वो फियर को लेते रहते हो। फिर उससे अलाइन होने की कोई मैच करते हो फ्रिक्वेंसी को, और वो आपकी जिंदगी में फिर उसी तरह से होने लग जाता है। जहां प्रॉब्लम नहीं है वहां भी होने लग जाता हम्म, है, क्योंकि फियर आते ही बॉडी चेंज हो जाती है। और जैसे आप बोलते हो एवरीथिंग इज परफेक्ट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज वर्किंग परफेक्टली, आई एम इन अलाइनमेंट विद अनकंडीशनल लव, आई एम नॉट अ बॉडी आई एम अ सोल। जैसे उस अवेयरनेस में आप रहते हो, आई एम अनकंडीशनल लव, ईच एंड एवरी सेल इज फिल्ड विद लव एंड लाइट एनर्जी, माई इम्यूनिटी इज वेरी हाई। जाइए रिपोर्ट करवाइए, यू विल सी द डिफरेंट रिजल्ट्स। ये सब प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप। राइट।
इसलिए ठीक है कभी सर। भी नहीं बोलना चाहिए मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को तो बोलना ही नहीं दोबारा। प्रॉब्लम तो हाँ जितना कम बोलेंगे उतना कम रिपीट होगी, और जितना हम रिपीट करेंगे उतनी आगे और आएगी वो। जैसे मान लो अभी 4 बार बोल हाँ दिया, जी। तो वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगी चीज। तो टेस्ट कब अच्छा, करना चाहिए? वो तो है। जब वो 4 को हाँ कर दो, तभी रिपोर्ट के लिए जाना है, वरना टेस्ट। हाँ हाँ हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हाँ। किए हैं। रिपोर्ट के पहले सब बढ़ अच्छा। गया, ऐसे नहीं जाना है। प्रॉब्लम हो तो अब कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि उस समय तो आप सबसे ज्यादा फियर में हो, सबसे ज्यादा लो वाइब्रेशन में हो। हमेशा टेस्ट जब कराना है जब आप राइट। हाँ फील हो। क्योंकि एक बार आपने पेपर के ऊपर हाँ देख जी। लिया, और अगर देख भी लो हम्म गलती से, तो ये कहना शायद रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कोई नहीं दोबारा रिपीट कराती हूँ मैं थोड़े टाइम के बाद। हम्म। देन यू विल सी द डिफरेंट रिजल्ट्स। हर चीज हम ओके। क्रिएट करते हैं, वी आर ब्रह्मा, वी आर द क्रिएटर। हाँ हाँ। तो प्ले अवर रोल very carefully. Choose what story to believe, what not to believe. जो प्रिफर नहीं करते हाँ तो सर, ये सारी सारी बातें ना मालूम है मेरे को, लेकिन फिर बोला जाता है सर, रहा नहीं, पता नहीं क्या दिमाग और मन नहीं, दिमाग उस में नहीं वक्त है। काम नहीं करता जब। मेमोरी कौन कंट्रोल करता है? आपके हायर सेल्फ। आपने ओके। जब तक किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं किया है, तब तक आपकी कोई भी नॉलेज काम हम्म नहीं आएगी। आपको बुला दिया जाएगा, हम्म आपने सोच लिया कि मेरे को आज इस बंदे से लड़ाई नहीं करना है, आपने बिल्कुल सोच लिया है, लेकिन जब उस बंदे के सामने आओगे और आपका अभी पेंडिंग है वहां लेसन, तो फिर आपकी वो सब चीजें काम नहीं करेगी। तो बंदा आएगा। कुछ हीटेड वो आर्ग्यूमेंट आएगा। होगा, कुछ तो वो ऐसा बोलेगा, आप सोचो इस बार वो बोलेगा हाँ तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, वो बोलेगा जो आप भूल गए हो, और उसमें आपको हाँ गुस्सा आता है कहीं हो, और जैसे उसने बोला आप बोलोगे रुक, और मालूम पड़ा हो गया ट्रिगर। तो इसीलिए कहता हूँ ना, मेमोरी मेमोरी भी आज हाँ। के हाथ में ही है। तो जब भी उनको टेस्ट लेना होता है ना, वो सारी नॉलेज को साइड में कर देता है, वहाँ प्रैक्टिस किया गया रियलाइज ज्ञान ही काम आता है मार्क्स। वो किस नॉलेज का? बिल्कुल सर, कल तो ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। और वो ये देखते हैं कि जब सिचुएशन आए हाउ यू आर रिएक्टिंग, नॉट व्हेन सिचुएशन इज नॉट देयर। अभी सिचुएशन नहीं आ रही मान लो अभी सेशन में, तो अभी आपको सब याद आ जाएगा, पुराना भी याद आ जाएगा, ऐसे भी याद दिला देंगे, लेकिन जब सिचुएशन आएगी फिर ऐसे बुला देंगे आपको। हम्म। दिस इज हाउ द रियलिटी वर्क। क्योंकि एक्सपीरियंस है हाँ तो जी। ये होना है ना, जब आपको याद नहीं है कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस ही तो करना है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो उन्होंने आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी प्रोग्रामिंग की हुई है, अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे बिलीफ पड़े हुए हैं, वो सबको मिक्स करके, मिक्स हाँ एंड जी। करके अलग ही कुछ बोलते हैं ना, मॉकटेल बना के आपके सामने लेके आएंगे। अच्छा। आप बोलोगे आज मुझे करी का बुराई नहीं करना है, लास्ट टाइम सोल्ट नहीं था, बाकी सब ठीक था, हम्म तो दिस टाइम आप सोच के सोल्ट नहीं था, इस बार मालूम पड़ेगा वो चिली डालना ही भूल गए। फिर अगर आपने बोला कि हम्म अच्छा मुझे फिर भी नहीं बोल रहा, तो उन्होंने पानी ज्यादा डाल दिया, लेकिन सिचुएशन तो वही है, तो हम्म। फिर उसके लिए बोलोगे आज नमक के लिए नहीं बोल रहे, आज किसी और के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप न्यूट्रल नहीं थे। ओके। सो दिस इज हाउ द रियलिटी वर्क्स। और मेमोरी तो उनके हाथ में है, तो ये हम्म। एक्सपीरियंस तो रियली होना चाहिए उसमें, मैच फिक्सिंग नहीं होती है। हाँ जी। स्पेशली माइंड के साथ मैच फिक्सिंग, कि आज माइंड चुप रहना, ऐसे बोलेंगे ओके गाइस कम विल सी। हाँ जी।
इसलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। वो पक्का हो जाना चाहिए ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर। इतना प्रैक्टिस कर लो कि बाय डिफॉल्ट आप न्यूट्रल हम्म शुरू कर दो। हम्म वर्क ऑन योर क्रिएटिव स्किल्स, वर्क ऑन योर पैशन, वर्क ऑन योर जॉय एनर्जी। डांस करो, मस्ती करो, जो हम्म जो जिसमें जॉय मिलता है करो, पढ़ते रहो। उससे आपको इजी होता है न्यूट्रल रहना। हम्म कल आपने वही तो किया ना, हम्म। जब लो में गए तो आपने क्या किया, गाने लगाओ, क्योंकि वहां पे हाँ आप सर, मैं सुनती रही आपके गाने सुन। हाँ तो जॉय मिलता है आपको, वहां पे जॉय मिलता है तो आपकी वाइब्रेशन हाँ। शिफ्ट हो गई। ओके। राइट। तो दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स। हम्म। जितनी म्यूजिक टेंशन सूट्स हो द उतना ही सोल। ज्यादा लाउड म्यूजिक लगा के डांस करना शुरू कर दो, अगर डांस करने में मजा आता है तो थोड़ी देर अच्छा। में न्यूट्रल हो जाओगे। फियर आ जाए तो हम्म करना शुरू कर दो, मंत्रा बोलो, डांस करना शुरू कर दो, गाना गाना शुरू कर दो, जो अच्छा लगता है हम्म करना शुरू कर दो। और माइंड को बार बार बोलते रहो, दिल को बोलते रहो, शांत शांत हो जा, शांत हो जा, देख फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, इस बार न्यूट्रल रहना है, इस बार न्यूट्रल रहना है। थोड़ी देर में नॉर्मल हम्म हो जाओगे। हम्म। सर गाने तो मैं बहुत सुनती हूँ, मेरे कुछ फेवरेट गाने हैं, तो मैं उनको सुने बिना रहती नहीं, अपने आप ही ये लगा और वो लेती गाने हूँ, वो नहीं सुनना, स्पेशली जब। वो ना रहा, वो ना रहा, ऐसा गाना नहीं सुनना है। दोस्त दोस्त ना रहे, ऐसा गाने नहीं सुनना है। गाने वो सुनना है हाँ आपको नहीं नहीं। चेंज करें। यस। हाँ हाँ। पॉजिटिविटी, लव वाले। या राइट सर। ओके, थैंक यू निर्मल जी। हु एल्स वांट टू, इफ यू एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। More you ask, more is very clear in your mind. More you program your brain. So whenever situation comes, it become your habit to like automatically will come out from your mouth, from your mind. Thought will come. यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Nirmal ji. थैंक यू सो मच। और कौन बोलना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा? सर कुछ दिनों से मेरे लेफ्ट घुटने में बहुत दर्द है। जब स्पेशली मेरे को उठना होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ कदम लेने के बाद थोड़ा दर्द कम हो जाता नेक्स्ट टाइम एक है। काम करना, सो ये कदम, फेमिनिन है। ये फेमिनाइन तो है, लेकिन साथ में क्या करना, जैसे आप उठते हो ना, थोड़ी देर खड़े रहो हाँ उसी जी। पोजीशन में, मूव मत करो इमीडिएटली। ओके। इट विल हेल्प यू। क्योंकि क्या होता है, ठीक जो है सर। आपका, जो आप बैठे रहते हो ना, आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है ना, वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है। तो जब आप थोड़ी देर खड़ा रहते हाँ हो जी। ना, तो वो सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, फिर नॉर्मल चल पाते हो आप। ठीक है। हाँ हाँ, यस यस, दैट इज ट्रू। सर इसका कोई मेरा फेमिनिन एनर्जी मेरे मदर से मेरी मतलब इतनी नहीं बनती थी जितने फादर से बनती थी। तो मैंने कभी उनको समझने की कोशिश भी नहीं करी, लेकिन लास्ट स्टेज में उनकी जो डेथ हुई तो तब मैंने उनकी डट के सेवा करी थी। तो उनको कैंसर हो गया था, तो तब मैंने बिल्कुल, वो तो शी बिकेम बेड रिडन, तब तो फिर मेरे को करना ही भी था और किया भी, दिल से किया। देखो लेकिन उसके बाद सर मैं। हाँ फेमेनाइन जी। का मतलब ये नहीं होता है कि फीमेल की सेवा करना, ये हाँ करना। फेमेनाइन का मतलब होता है जो, जो आपकी फेमेनाइन की जो स्पेशल पावर्स आपको दी गई है ना, शक्तियां, चाहे वो आपकी साइकिक पावर्स हो, चाहे हाँ वो जी। आपकी फीमेल
फेमिनाइन एनर्जी से रिलेटेड, क्रिएशन की पावर हो, बर्थ देने की कोई पावर हो, जैसे पीरियड्स जो होते हैं उनका से रिलेटेड कुछ हो, या आपके जो फीमेल का जो बोलते हैं ना स्ट्रक्चर होता है आपका उससे रिलेटेड हो। आप ऐसा तो नहीं कहते किसने औरत बना दिया, क्यों अच्छा बना दिया, क्यों नहीं करा दिया, तो वो सब फेमिनाइन को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में। अपने बॉडी पार्ट्स को अपने अच्छा। साथ जो हो रहा है उसको नहीं कर रहे हो। वो जो पावर आपको दी गई है उसको हम्म रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो फेमिनाइन से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको दी गई है जो मस्कुलाइन में नहीं होती है, अगर आप उनसे चिढ़ते हो ये हम्म कहते कि यार मेरे को तो जेंट्स बनाना था, लेडीज क्यों बना दिया, क्यों ये सब हो गया हमारे साथ, ये क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, खुद को रिजेक्ट कर रहे हो, खुद के बॉडी पार्ट्स को, खुद की उस हिस्से को रिजेक्ट कर रहे हो। तो रिजेक्शन की एनर्जी उन पार्ट्स में आ जाती है जो कि बीमारी के रूप में आ जाती है। ओके। तो इसीलिए जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी आपको दिया है किसी रीजन से दिया है। बर्थ देने की पावर जेंट्स को थी ना, हम्म वो सिर्फ दी गई है फीमेल्स को, तो ये जानना है हमें, हम्म तो उसका रेस्पेक्ट। हम्म और हम लोग कई बार बच्चों को आफत समझ रहे हैं, हमें ही पालना है, हस्बैंड हेल्प नहीं कर रहा है, क्या यार बच्चे आफत है। वो बच्चे आफत है क्यों पैदा हो गए, नहीं होना था, ये पसंद नहीं है, फिर एक जन्म में बच्चे भी नहीं होते उनको, फिर वो कहते हैं वो बच्चे नहीं है हमारे को लाइफ में। फिर मालूम पड़ता है किसी जन्म में उन्होंने हम्म बच्चे को पसंद नहीं किया, हुआ तो भी कहीं पे फेंक के आ गए, और इस जन्म में बच्चे ही नहीं आ रहे उनको। हम्म सारी चीजें हमारी क्रिएट की गई होती है। इसलिए कहता हूँ फेमिनाइन पावर को बहुत अच्छे से करना चाहिए। बच्चे भी एक गिफ्ट होते हैं आपकी, गॉड गिफ्ट होते हैं, या आपके मान के चलो एक्सपीरियंस कंप्लीशन जो भी है उसमें हेल्प करते हैं। हाँ नहीं बट सर बच्चे होना बहुत जरूरी है बिकॉज दे सर्व द ह्यूमैनिटी। हमने पैदा कर दिए लेकिन हम ह्यूमैनिटी को। अब मेरा बेटा जो काम कर रहा है वो एडवोकेट है। वो मतलब लोगों की सेवा कर रहा है। मैं उसको ना पैदा करती तो वो सेवा जो ह्यूमैनिटी है उस सेवा से वंचित रह जाती। तो ये तो मेरे को कंसेप्ट क्लियर है कि बच्चे होना बहुत जरूरी बात है। अगर नहीं होते तो वो अलग बात है। तो लेकिन एज ए अगर हो गए ब्लेसिंग हैं तो। लेना है, एज ए ब्लेसिंग भी लेना है, ऐसा नहीं कि कर्ज कर हाँ दो यार ऐसे बेटे से तो ना होना ज्यादा अच्छा था, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम वो हाँ एक्सपीरियंस नहीं कर नहीं लेते हो, सर। फिर एक्सपीरियंस भी हो हाँ जाता है। ऐसा थॉट नहीं मान। बहुत हाँ, सारे ऐसा हमारे थॉट पास नहीं जैसे लाना सर। केसेस आते हैं 45 ईयर्स हो गया है, 40 ईयर्स हो गया है, बच्चे ही नहीं है। हाँ जी। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो किया होता है अपनी लाइफ में, उनसे नफरत की होती है, तो ये सारी चीजें होती है। अच्छा। तो इसीलिए अपने हम्म फेमिनाइन पार्ट को, अगर आप फीमेल बॉडी में तो, और मस्कुलाइन अगर उसमें हो, आप मेल बॉडी में हो तो उसको आपको रिस्पेक्ट करना है अपने दोनों पावर्स को। और ऐसा नहीं कि आज फीमेल में हो तो हम्म हो सकता है आप कल मेल बॉडी में भी कहीं ना कहीं थे। वो दोनों चलते रहते हैं साथ ही। हाँ हाँ सर ये तो है। सेक्स तो बदल जाता है। और पैरेलली चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं होगा आगे हुआ या पीछे हुआ, वो दूसरी रिलेटिव में ही हो रहा होता है। अच्छा हाँ। हाँ पास सर वो जो हमारी 7 बॉडीज कहते हैं वो उनमें भी मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इसीलिए पता वी नहीं आर किसने विद बोल दिया स्पीकिंग। 7 बॉडीज, लेकिन मेरे को तो हर पल एक नई बॉडीज आ रही, बिलियंस मिलियंस बॉडीज है। बॉडी तो हर पल चेंज हो रही है, हर वाइब्रेशन की एक एक बॉडी है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो फिर बताओ कौन सी बॉडी की बात, कौन सी बॉडीज, जो सर लेवल ये बुक्स वगैरह में लिखा हुआ बुक्स है उन्होंने 7 बॉडीज के बारे में उन्हें ना। उन्हें जो एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने लिख दिया, लेकिन ब्रह्मांड तो लगातार चेंज हो रहा है। ब्रह्मांड थोड़ी बिल्कुल। में रुक गया। कल हम यही तो बात कर रहे थे, 84 लेक्स योनिस की हम बात करते हैं। विकिपीडिया के पास हम्म उसमें ही 1 लेख के अबव है। 84 लेक्स के, 100 लेक्स के ऊपर मिल जाएगी आपको वहां पे।
तो आप देख लो ना, अच्छा। तो पुरानी बातें हो गई, बुक्स ठीक है, वो किसी टाइम में किसी ने एक्सपीरियंस लिया था, लेकिन उसके बाद तो बहुत एक्सपेंड हो चुका है यूनिवर्स। अब वैसा नहीं रहा है, हर पल हो रहा है। आज का गाना सुन हाँ, ले, आज का यही था। जितने हम एक्सपीरियंस लेते जा रहे हैं, ठीक है। उतना ही और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा क्रिएशन होता जा रहा है। आप ही देखो ना, आप जिस सिटी में अभी रहते हो, क्या पहले वैसी थी वो? ना ना सर, बिल्कुल नहीं। अकल ही थी, बड़ी बेवकूफियां करी। तो फिर ब्रह्मांड वहीं रुक जाएगा क्या? हम सब लोग ये समझ के बैठ चुके हैं कि ब्रह्मांड चेंज नहीं हो रहा है, हम उसको सीख रहे हैं। जबकि असल बात ये है, जितना हम उसको सीख रहे हैं, जितना एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो एक्सपेंड होता जा रहा है। क्योंकि क्रिएटर को हम्म। खुद को एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो वो तो बढ़ता ही जा रहा है। हम्म। इसलिए तो कहता हूँ ना, बुक्स से लिमिट मत करो अपने आप को। कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ नोज ईच एंड एवरीथिंग। जो आपको बताना है उस पल में वो आपको दिखाते रहेंगे। बट फर्स्ट कम आउट ऑफ। हाँ सर, नहीं अब तो पढ़े, अब नहीं पढ़ी जाती है सर किताबें। अब वो आई साइड पे इफेक्ट पड़ता है। और जो पढ़ लिया तो उसको अब भी तो मैंने अनलर्न करना पड़ेगा और भूलना तो वो, पड़ेगा। हाँ, बातें छपी हुई हैं। जब कोई डब्बे से कोई सामान ही नहीं निकालोगे तो नया कहाँ से भरोगे? नया पुराना दोनों भरोगे तो खिचड़ी हो जाएगी होच पोच। हाँ जी। व्हाट यू वांट, ओल्ड और न्यू वन? क्या आप अभी ये बोलोगे कि हमारे हाँ। गांव में घर में एक कच्चा घर था, या आप बोलोगे अब पक्का घर हो गया? तो नॉलेज भी वैसे ही होती है। क्या सर, आपकी आवाज कट रही है? सर आपकी मैं आवाज कट रही, मैं क्या ये बोल बोला रहा हूँ, आपने अभी? पहले पहले विलेज में हट्स वगैरह हुआ करती थी, राइट? झोपड़ी वगैरह बनती थी, मड की बनती थी। अभी हाँ। कॉन्क्रीट की बन गई है, आरसीसी का सब बनने लग गया है। तो अभी आप क्या बोलोगे, दोनों एक साथ बोलोगे कि मेरा क्ले का बना हुआ घर है और मेरा कंक्रीट का बना हुआ घर है? तो दोनों में से एक तो डिलीट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो पहले था, हाँ जी। हाँ जी। वो निकल गया। अब आपको यही बोलना है कि जो हाँ है जी। वही बोलना है। तो यूनिवर्स तो एक्सपेंड होता जा रहा है लगातार, और हाँ हम लोग जी। है ना, जिन लोगों ने बुक्स लिखी है, वेद पुराण हाँ। सब लिखे थे, उसके बाद क्या एक्सपेंड नहीं हुआ क्या? यूनिवर्स हो रहा है, लगातार हो रहा है। किसी ने अगर 4 5 7 हाँ। अलग अलग उसको लेवल को एक्सपीरियंस किया है, जाना है, तो लेवल्स तो भी बहुत सारे हो जाएंगे। हर पल ही नए नए क्रिएट हो रहे हैं। अभी अर्थ के ऊपर हाँ एक्सपीरियंस जी। गैलेक्टिक का मान लो, तो अभी होने वाला है, वो नए तरीके से होने वाला है। वैसा ही नहीं होगा, और अलग तरीके से होगा। तो हर बार कुछ नया होता जा रहा है। इसीलिए तो हायर यस यस, ने दैट्स ट्रू। फिजिकल रियलिटी को ऐसा क्यों बनाया है कि वॉट एवर यू नीड इन दिस मोमेंट विल बी गिवन टू यू? क्यों बनाया? क्योंकि ये चेंज होता रहता है। वरना वो कह देते ना कि ठीक है, हम्म। एक रेफरेंस मटेरियल दे दिया है, जिंदगी भर उसको पढ़ो। Why he has to हम्म। do all the information in that moment? Because it keeps हम्म। changing. Clear? हम्म। जब हाँ जी। हाँ जी। आपके सिटी के लेवल ही अलग अलग बनते जा रहे हैं, तो यूनिवर्स के सोच के देखो। ये तो है ये। हम्म। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? जब आपको ये मालूम पड़ जाता है कि ये स्पेस और टाइम इल्यूजन है, फिर सब कुछ यही है, सारी डायमेंशन सब कुछ यही है, इसी पॉइंट पे है सब कुछ। फिर क्या करोगे? जहां हमें जिस हाँ जगह जी। पॉइंट में खड़े, मोमेंट में, वहीं पे सब कुछ है। लेकिन हम्म। एक्सपीरियंस करने के लिए वो स्पेस और टाइम आ जाता है, लीनियर वे हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर है तो सब वही है। हम्म। वो जापानीज फैन आता है, यू नो दैट? हाँ सर, छोटा सा रहता है बिजनेस। याद है ना वो? छोटा सा बन जाता है वो, फिर उसको एक्सपेंड कर देते तो बड़ा हो जाता है, राइट? राउंड बन जाएगा।
तो ये ऐसे ही है, स्पेस भी एक इल्यूजन है। बाकी देखा जाए तो सब चीज उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे है। ये खैर बाद में बात करेंगे जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। Yes. अच्छा, ठीक है सर। और कौन पूछना चाहता है क्वेश्चन? मजा आ रहा है। और क्वेश्चंस, मोर मोर मोर। सर मैंने मैम से बात करनी है। मैं ये सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं कर सकती हूँ उनसे बात? क्यों नहीं कर सकते? जरूर करिए ना। नहीं सर, नहीं मैम, मैं आउट ऑफ सेशन बात करूंगी। हाँ हाँ हाँ, करिए, वो कर सकते हैं। जरूर करिए। कॉल कर दीजिए इसके बाद। जी ठीक है, ठीक है। जी। ओके, सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है तो पूछें, तो जल्दी से पूछ लीजिए। सर हमें पूछना है। यस। सर जैसे लोअर फ्रीक्वेंसी में आते हैं हम, तो सर उस वक्त जो गुस्सा चढ़ता है या उस वक्त जो मतलब समझ आती है, तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही बेकार है, सब कुछ गलत है। सब ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें नेगेटिव में आ जाते हैं कि ना हो तो अच्छा। सर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हम तो कुछ नहीं समझ आता हमें सर। सर फिर जब शांत होते हैं तो लगता है कि भाई बहुत ज्यादा ही मतलब कहाँ से मतलब कहाँ पहुंच जाते हैं सर, ये नहीं समझ आ रहा हमें। ओके भारती जी, सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो। अगर आपने कोई सब्जी बिगाड़ दी है तो उसके लिए दुनिया खराब है या जो आपने क्रिएट किया है वो खराब है? सर जो पहले हमने क्रिएट करा है सर, हमें नहीं पता ना सर। इस वक्त हमें बहुत मुश्किल लग रहा है सर। सर वो आते ही नहीं हमें समझ आ रही है हमारी, खुद से ही परेशान है सर। कोई ना ना, परेशान करे ना करे होल्ड ऑन खुद से होल्ड ही। ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आपको नहीं पता, वो तो आपको पता नहीं कराना बाय डिजाइन ही है। वो तो किसी को भी पता नहीं करवाते हो। वो आपको विश्वास करना पड़ता है। क्लियर हो गया? और अगर आपको लग रहा है कि आपने करी गलत बना दी है, तो इस बार अच्छा बनाओ, दुनिया को दोष मत दो। अगर आपने कुछ रिलेटिव में कुछ खराब कर दिया है तो ठीक कर लो ना। सर एनर्जी का लेवल कम लगता है, हमें अपनी एनर्जी नहीं लगेगा लगता ही सर सही जितनी ना। होनी चाहिए सर। लगेगा ही सही ना, किसी और की एनर्जी कम करोगे उन्हीं सिचुएशन में तो आपकी जो होगी ना, वही तो एक्सपीरियंस है ना। तो किसने बोल दिया कि आपको नेगेटिव? अभी आपने बोला, आज बताया ना, नेगेटिव एक्सपीरियंस भी उतना ही वैलिड है जितना पॉजिटिव। तो जो लोग सुना रहे हैं ना, वो भी वैलिड है, एक एक चीज वैलिड है। वो उसी का हिस्सा है। और अगर उसमें लो जा रहे हो तो उसको पॉजिटिव ले लो, अपॉर्चुनिटी अलाइन करने की, ठीक करने की अपने आप को। अच्छा सर कि एनर्जी लेवल हम चाहते हैं कि बढ़े, वो कैसे एनर्जी तो बढ़ाएंगे हम जाएगा सर? ना, एनर्जी जाएगा तभी तो मंत्रा बोल के ऊपर आना है। एनर्जी नीचे नहीं जाएगा सर तो बात ही नहीं भी समझ आ रही। काउंट नहीं होगा ना। सर समझ नहीं नेगेटिव आ रही हमें एक्सपीरियंस ये थोड़ी बात। आपकी जगह दूसरी बात जी लेंगे, आप ही लोगे। नेगेटिव भी आप ही को लेना है, पॉजिटिव भी आपको लेना है। क्लियर? बच नहीं सकते आप। इसलिए जो लिया है ना, सर दो दोनों लेने पड़ेंगे सर, दोनों लेने पड़ेंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव तीनों भी। तीनों, नेगेटिव भी लेना है, पॉजिटिव भी लेना है, न्यूट्रल होके भी लेना है। तीन एक्सपीरियंस के बिना तो काउंट ही नहीं होती है। तो अच्छी बात है ना, नेगेटिव ले रहे हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ, पॉजिटिव में स्विच हो जाओगे। यही तो मास्टरी करनी है आपको, उससे तो बचोगे नहीं ना। आपकी सोल बार बार सर बेस। न्यूट्रल में कैसे रहना है? लेसन लेने में क्या है? वही तो बोल रहा हूँ ना, सब्जी खराब बन गई तो क्या करना है इसमें? दोबारा बनाओ, इस बार अच्छे से बनाओ। क्या कमी रहेगी उसको ढूंढो। ये मत सोचो लोग खराब, ये बोलो कि मैंने क्या खराब चुन लिया है। आपकी डायरेक्शन ही दूसरों की तरफ है ना, इसलिए वो है। सर नहीं, हमें लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर देते हैं काफी। हमें लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस समय पता भी है फिर टाइम भी तो हम करे जा इल्यूजन रहे है, हैं क्या ऐसा। वेस्ट करोगे? टाइम तो इल्यूजन है। अभी ये तो बात कर रहे थे, स्पेस और टाइम तो इल्यूजन है वैसे भी। देखो फिजिकल सर वो तो रिलेटिव, पिछले जन्म अगर का आप, लग रहा है हिसाब किताब, पास्ट का ही है कुछ। तो वो तो ऐसे ही, अगर है तो पास का तो रहेगा ही ना। अगर कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब आपने भी पास में गड़बड़ की हुई है। सर अब वो लोग माफ करना है ना आपको जिनके साथ गड़बड़ की है। आप अपने घर वालों को माफ करेंगे तो वो आपको माफ करेंगे। आप इनको माफ नहीं करोगे, वो भी आपको नहीं कर रहे। वो आपको नहीं कर रहे तो आप परेशान होते हो, लो जाते रहोगे। आपने इनको माफ कर दिया, उन्होंने आपको माफ कर दिया, फिर लो नहीं जाओगे। राइट सर, अब समझ आ रही है।
जो भी कर रहे हैं हम खुद के साथ ही कर रहे हैं, आप दूसरों को दोष नहीं दे रहे, खुद को ही दोष दे रहे हो, तो बंद कर दो उसको तुरंत। खुद से प्यार करने लग जाओ, वो भी प्यार करने लग जाएंगे। सर सब हमसे वो करते हैं, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल लोगों की तरह रहे, मगर हम आप नॉर्मल भी तो लोगों की खुद तरह से नहीं बहुत रह पा रहे। एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, आप भी तो खुद से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। मेरे को और ये करना है, मेरे को और ये करना है, मेरे को और ये होना है, मेरे को और, आप भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना खुद से, तो दूसरे क्यों नहीं करेंगे? मतलब आप तो कर लो, दूसरे ना करें, ऐसा थोड़ी होता है। सर पावर सब में एक जैसी होती है सर, जैसे बिल्कुल, ह्यूमन पावर बीइंग सब में। होती है, फिल्टर लगा के उसको लो वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, पावर तो सब में एक सी है। तो इसमें कोई हेल्प कर सकता है, जैसे मतलब ऐसा हो सकता है कोई सोल हमारी हेल्प कर सके कोई और, नहीं नहीं, जैसे हम कोई लो help नहीं वाइब्रेशन। करेगा, एक्सपीरियंस तो आप ही को लेना है। उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, गाइड कर भी देगा तो जो भी वो गाइड वाले ने सिखाया आपको, जब सिचुएशन आएगी तो बुला देंगे। वही तो बात कर रहे थे निर्मल जी से। एक्सपीरियंस तो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। सिर्फ रियलाइज ज्ञान ही आपके उस समय याद रहेगा, बाकी नहीं। तो जब आप नेगेटिव एक्सपीरियंस ले चुके हो, न्यूट्रल रह चुके हो, या उसको आपने समझ लिया है, तो वो चीज आपके साथ रहेगी टेस्ट में। बाकी कोई कुछ भी कह रहा है, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा तो सब बुला देंगे आपको, वापस से वही सिचुएशन। एग्जाम तो दिया होगा ना आपने? तो रोज ही लग रहा है एग्जाम तो। नहीं, एग्जाम वो स्कूल कॉलेज में नहीं दिए थे क्या? टीचर आपको बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, जब टेस्ट आता है तो? सर हमारे साथ ऐसे ही तो हुआ है, जैसे हम सपने में भी, नींद में भी ऐसा लगता था कि मतलब बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे हमें लगता है पेपर पड़ा हुआ है, सब भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा होता था सर। नंबर कम आ रहे हैं वो सर, ये चीज में तो फ्रिक्वेंसी वही तो रहती यहाँ, थी। भी हो रहा है ना, कि आपको सब सिखाते हैं फिर भूल जाते हो। वो चेंज करो बिलीफ को। तो वो डर ही तो समझ नहीं आ रहा कि किस चीज का डर है, मतलब क्या चीज है अंदर, क्या किस चीज की कमी है हमारे, तो यही नहीं समझ आ रहा सर। सर मतलब ऐसा लगता है कि जो हमें एनर्जी होनी चाहिए वो पूरी एनर्जी लगती नहीं, जैसे फटाफट काम करके निपटा के बैठ जाए, वो नहीं सर, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, आधा दिन निकल जाएगा, फिर वो करेंगे काम, रात को हो रहा है जी, कपड़े रात को धुल रहे हैं, लोग सुबह धो धो के पास एक साइड हो जाते हैं, हम रात को धो रहे हैं कपड़े। वाओ, सर दिन में हम क्या कर रहे आपको इतनी अवेयरनेस तो है ना, कहाँ भूल रहे हो आप, सब तो याद है आपको। आपकी थे। मेमोरी तो बहुत अच्छी है। हाँ, सब तो याद है, सारी अवेयरनेस में ही हो आप तो, और क्या चाहिए? तो जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना, सब काम टाइम पे करते हैं सर, हमारा वो क्यों नहीं है सिस्टम। खत्म करो एक्सपीरियंस। मैम जैसे गर्मी का दिन रहता है ना, तो गर्मी के समय किसी धूप में ज्यादा काम करने की इच्छा नहीं, तो मैं क्या करती थी, कपड़े भिगा के रखती थी, एक्स्ट्रा के जो ड्रेसेस हैं रेगुलर वाले तो कर लेती थी, लेकिन जो बाहर के ड्रेसेस हैं धोना है, भिगा के रख दो, 4 बजे मैं शाम को धोऊंगी आराम से, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है, और बढ़िया एंजॉय करते हुए कि नल आया है उस टाइम, और बढ़िया मैं धो रही हूँ कपड़े, और वो 1 घंटे में सूख भी जा रहे हैं हवा से ही। तो काम का इतना क्या टेंशन लेना मैम, अभी करना है तो अभी करना है, बाद में नहीं करना देखो, है। टेंशन लेना भी एक एक्सपीरियंस लेते रहो, ठीक है।